Assalamualaikum everyone. I hope that most of us has joined us. So let me start the session. First of all, the purpose of for this session is the topic of this session is guidelines for professionalism, the code of conduct and ethics. So first of all, there are some instructions for all of you. Please note that this session will be recorded and make sure your mics are muted during the session. And if you have any questions, you can note it down, and we will have a question answer session at the end of the session. And you will also be provided with the recorded version. So, starting with the purpose of introducing professionalism guidelines. Why introduction of professionalism guidelines and introducing code of conduct and ethics in the organization is important because professional workplace behavior is necessary for the long-term success of an organization. Employee interactions and relationships with customers and within the organization are of vital importance to ensure that our goals and objectives are met. A professional work attitude and behavior allow employees to take pride in their work and improve work performance. Employees who behave professionally set an appropriate example by encouraging their people to conduct themselves in a manner that supports company-wide success. Introducing guidelines for professionalism helps to underscore its importance and will result in establishing appropriate personal and professional boundaries, encourages personal development, establishes respect throughout the organization from top management to all level of employees, boosts respect and minimizes conflicts, improves business and professional relationships, prohibits inappropriate behaviors, etc. So basically, what I'm going to cover in this session is what we are expecting from all of you as a company and what we are not expecting from all of you as a company. So let's start with what are expected from you, in fact from all of us, including HODs, team leads, directors and everyone who is a part of Fedra family. These are some things we are expecting from you and from all of us. So, the very first thing is work ethics. Ethics are important. You all know that we have already entered in a corporate world. We are professionals, and I truly believe this that every one of us is a competent and good professional. But why these things are important? Why underlining these points are important, so that we have a clear picture, we have a clear point of views that what your company, what your organization is basically expecting from you, and what your company is not expecting from you. So workplace ethics, work ethics, the very important, the main major thing behaving in a workplace is workplace ethics. If you are not uh, following workplace ethics, everything will be in a mess. So please make sure your comments, gestures, behaviors doesn't harass anyone at workplace. Sometimes कुछ situations ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे लिए नॉर्मल होती हैं, किसी के ऊपर कमेंट करना, या हमारे कुछ ऐसे बॉडी लैंग्वेज होती है, कुछ ऐसे जेस्चर्स होते हैं जो कि हमारे मुताबिक अकॉर्डिंग टू अस नॉर्मल हैं और हार्मफुल नहीं है. बट यू नेवर नो कि आपके किसी कमेंट से, किसी जेस्चर से, किसी भी बिहेवियर से आपका कोई कॉलीग, आपका सबऑर्डिनेट, आपके साथ काम करने वाला कोई भी हर्ट हो सकता है या हरासमेंट फील कर सकता है. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट हमारे कोई भी कमेंट से, जेस्चर से किसी की भी फीलिंग्स हर्ट ना हो. द सेकेंड थिंग इज appropriate language. We must use appropriate language while working in a workplace. We should think before we comment at work on our colleagues. Like as I already mentioned कि there are some things जो कि हमारे लिए normal होती हैं. हम डेली लाइफ में जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, स्पेशली घर पे, अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में. So these are the things, these are the language we must avoid at workplace. We must use professional language so that anyone, कोई भी
जो है हमारे साथ काम करने वाला कोई भी कोलीग उसकी वजह से हर्ट ना हो या डिसरिस्पेक्टफुल फील नहीं करे। द थर्ड थिंग इज रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। ये सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स जो हैं इंटर रिलेटेड हैं ऑब्वियसली। जब आप वर्क एथिक्स पे फोकस करेंगे, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करेंगे, that will ultimately lead you towards respecting for others. So it is expected from us to treat all people like they matter. अपने behavior से portray करें कि everyone working in Fedra Solutions in your Fedra family is important and they really matter for us. Bullying and disrespectful behavior should be completely avoided by all of us because everyone is equal in Fedra, even that is a junior or even that is our admin office staff. Everyone is equal and everyone deserve respect and honor. So moving forward, be positive. Being positive is very important when you are working in a corporate world, when you are out doing your professional career and excel in your career, because uh, because when you have a positive attitude, you can perform well, you can present well. So always come up with, if you have any complaints, for example, so always come up with the solutions, not just complaints that I have this issues, I have these problems. Normally ये होता ये है when employees, when we face any problem, we got panic और हम सोचते हैं कि नो अब तो ये इशू आ चुका है, सो इसको हम पैनिक हो जाते हैं। इंस्टेड हमारा बिहेवियर इस तरह का होना चाहिए कि वी शुड रिमेन पॉजिटिव इन दैट सिचुएशन और हम solutions लेके आए rather than complaining. So also we trust our family members to celebrate other successes and participate in their joyful moments. Like ये नॉर्म हम ऑलरेडी रख चुके हैं, आप जानते हैं कि हम अपने जी चैट में जो जनरल का हमारा रूम है उसमें हम ऑलरेडी अपने टीम मेंबर्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को सेलिब्रेट, उनके सक्सेसेस को सेलिब्रेट करते हैं, उनके स्पेशल मोमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं. सो we expect from all of you doing the same. If your junior is working well, performing well, you must appreciate him, her, and participate their successes with them. And the next thing is diversity. Okay, diversity is something, explain करती हूँ उसको यहाँ पर. Diversity is something कि we come from different backgrounds. हम डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं हमारे पास. कुछ लोग लाहौर से हैं, आउट ऑफ सिटी भी हैं. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी एट द वर्क प्लेस. सो वी मस्ट कीप दिस इन माइंड कि हम डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं और हमारे अपने एथिक्स, जो हमारे पर्सनल एथिक्स होते हैं, जो हमें घर में सिखाए जाते हैं, हमारी अपब्रिंगिंग जिस तरीके से होती है, वो एथिक्स और हमारे वर्क प्लेस की जो एथिक्स हैं उनमें फ़र्क हो सकता है, उनमें डिफरेंस हो सकता है. सो वी मस्ट कंसिडर दिस कि हमारे पर्सनल एथिक्स और हमारे वर्क प्लेस के एथिक्स में डिफरेंस होगा एंड वी मस्ट हैव टू कॉप अप विद दिस. फॉर एग्जांपल कोट करती हूँ यहाँ पर. फॉर एग्जांपल कुछ घरों में या कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रैंक लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं. कुछ फैमिलीज़ में ऐसा नहीं होता है, कुछ फैमिलीज़ अलाउ नहीं करती हैं. बट एट योर वर्क प्लेस, जैसे कि पहले भी बताया कि यू मस्ट हैव टू यूज़ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज. सो आपके घर का कल्चर, आपके पर्सनल एथिक्स, आपका पर्सनल कल्चर जो है आपके वर्क प्लेस एथिक्स से डिफरेंट हो सकता है एंड दैट इज़ totally okay. You can easily cope up with this and just keep in mind that we are from different cultures and we must respect each other in that terms. The other thing is handle pressure. You all know that we all have to handle pressure in every circumstances. हर डिपार्टमेंट में हम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, नॉट ओनली फ्रॉम द टेक्निकल डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट टेक्निकल है, चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट, HR, एडमिन, फाइनेंस, हर डिपार्टमेंट के प्रेशर की जो नौयत होती है वो डिफरेंट है. ठीक है, everyone is facing pressure, every department is facing pressure. So we must stay calm under pressure and keep our nerves under control and let our supervisor or team lead know if pressure is unbearable. होता क्या है
नॉर्मली जब हमें प्रेशराइज होती हैं चीज़ें, डेडलाइंस हमारी करीब होती हैं, तो वी गेट प्रेशराइज्ड होते हैं। और इस सिचुएशन में, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया, यू मस्ट हैव टू बिहेव पॉजिटिवली। आप पॉजिटिव बिहेव करें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो प्रेशर है वो अनबेरेबल है, मेरा काम नहीं हो पा रहा है इस प्रेशर की वजह से, तो यू शुडंट हैव टू बी कीप क्वाइट। यू हैव टू टॉक टू योर सुपरवाइजर, योर टीम लीड। आप अपने सुपरवाइजर को, अपने टीम लीड को डायरेक्टली अप्रोच करें, आप उन्हें बताएं कि ये जो प्रेशर है इसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है। सो आपने प्रेशर को इस तरीके से हैंडल करना है, पॉजिटिविटी के साथ, और अपने टीम लीड को लूप में रखते हुए, इन्फॉर्म करते हुए, so that we can come up, your team leads and your supervisors, your HODs can come up with solutions to resolve that problem, to less your pressure. Okay, moving forward. Honesty. Why honesty is important? As you know, okay, honesty and fairness is one of our core value as well. And we as a Federal Solutions, we as an organization, focuses very much on our core values, and honesty and fairness is one of them. So we should tell the truth and are upfront about these things. And this is already mentioned in the NDA as well, that we'll be careful about confidentiality of the organization concerns and information. For more information, you can read the NDA as well. NDA के बारे में थोड़ा सा NDA के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी मैं यहाँ पर। ये NDA इज अ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। बेसिकली एक एम्प्लॉय जो है वो इस तरह समझें कि खल्फिया बयान ले रहा होता है और ओथ ले रहा होता है कि वो कंपनी का एम्प्लॉय रहते हुए उस ड्यूरेशन में किसी भी किस्म की कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करेगा, किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, ऑनेस्ट रहेगा, फेयर रहेगा, कंपनी में रहते हुए भी, इवन कंपनी लीव करने के बाद भी। सो वी एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस कि हम ऑनेस्ट रहेंगे, फेयर रहेंगे। अब ऑनेस्टी में एक चीज़ और भी आती है कि आप फॉर एग्जांपल कभी-कभी ऐसा होता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू डू अ प्रोजेक्ट, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर आपके टीम लीड या आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि ये डेडलाइन है और इसके अंदर आपने ये पार्ट, ये चीज़ें कवर करनी है। तो होता ये है कि बाज़ दफ़ा हमें लग रहा होता है कि ये जो मुझे टास्क दिए गए हैं कि इतने ज़्यादा रियलिटी के ऊपर बेस नहीं कर रहे, या जो मुझे डेडलाइन दी गई है ये इसके अंदर मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, इतने रियलिस्टिक नहीं लग रहे हैं मुझे कि इस टाइमलाइन के अंदर मैं इनको कंप्लीट कर लूँ। लेकिन हम करते क्या हैं कि हम अपने टीम लीड को ये बात बताते नहीं हैं, कन्वे नहीं करते। हम कह देते हैं ओके फाइन, हम कर देंगे, जबकि हम जानते भी हैं कि ये चीज़ इतने टाइम में नहीं हो पाएगी, या मुझे इसके अंदर हेल्प की या सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अपने टीम लीड्स के साथ इस चीज़ के अंदर भी ऑनेस्ट रहें, फेयर रहें, कि कोई भी कमिटमेंट करने से पहले आप अपने टीम लीड को ये बात बताएं कि मैं ये कर सकता हूँ इस टाइम के अंदर, या मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। कहने का मकसद ये है कि कोई भी कमिटमेंट करने से पहले कोई भी किस्म की फॉल्स कमिटमेंट नहीं करें, क्योंकि जब आप कमिट कर लेते हैं तो ऑब्वियसली योर टीम लीड, your company, we rely on you. So we expect that every one of us will follow this core value of us, that is honesty and fairness. Another thing is integrity. As you all know that we are known for our consistent principles. हम डेली लाइफ में आते हैं ऑफिस, that is not just coming to the office. हमारे हैं ऑफिस में तो हमारी एक रूटीन सेट होती है और वो रूटीन हमारे प्रिंसिपल सेट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सुबह जल्दी आता है, टाइम पे आता है, टाइम से पहले आता है, तो ये इसका एक कंसिस्टेंट बिहेवियर है, वो एक कंसिस्टेंट प्रिंसिपल सेट कर रहा है कि वो पंक्चुअल है। ठीक है, तो हम अपनी रूटीन से हम जिन चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करते हैं, हम अपने कंसिस्टेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं। सो वी मस्ट बी कंसिस्टेंट in our routine, and we should also admit when we are wrong. Integrity means कि गलतियाँ सबसे होती हैं, हम गलतियाँ करके ही सीखते हैं, और ऐसा हो नहीं सकता कि हम कभी भी कोई काम कर रहे हैं और हम उसको बिल्कुल बिना गलती के करें। तो गलतियाँ होती हैं और हमसे भी होती हैं, सबसे होती हैं, सीनियर से भी होती हैं, जूनियर से भी होती हैं।
So the point is, गलती करना doesn't matter. You make mistakes, that doesn't matter. But when you admit that mistake, that is integrity. Next thing is listen carefully. Basically, problems कहाँ आते हैं? प्रॉब्लम का जो रूट कॉज होता है, देयर आर प्रॉब्लम्स, आते हैं, आते रहेंगे. प्रॉब्लम होना मैटर नहीं करता. मैटर ये कर रहा होता है कि जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे तरीके से समझा जा रहा है और हम अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने जूनियर्स को, अपने टीम मेंबर्स को सुन रहे हैं, केयरफुली सुन रहे हैं. बिकॉज पीपल वांट टू बी हर्ड, so we give our family members a chance to explain their ideas. And you all know that we are very much open. In fact, we are all open to listen to you, to listen to your ideas. और आपको ऑलरेडी ये बात पता है, we have FedRide boards, हमारे पास फिजिकल बोर्ड भी मौजूद है, उसमें आपके सजेशंस देते हैं और उनमें से बहुत सारे सजेशंस के ऊपर काम हो भी चुका है. हमारे एडमिन डिपार्टमेंट ने, हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने, HR डिपार्टमेंट ने मिलकर इन चीज़ों के ऊपर काम किया है और हम आपकी सजेशंस को, आपके आइडियाज़ को वैल्यू करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करते हैं. सो हम आपसे भी ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अपने टीम मेंबर्स, आपके जो जूनियर्स हैं, इनफैक्ट जो न्यू ज्वाइनर्स आते हैं, आप उनको सपोर्ट करें, उनकी प्रॉब्लम्स को, या अगर वो आपसे कोई हेल्प चाहते हैं या कोई आइडियाज़ शेयर करना चाहते हैं तो आप उनको केयरफुली सुनें, सो दैट हम उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकें और फेडरा की बेटरमेंट के लिए काम कर सकें. ओके, रिलायबिलिटी इज समथिंग, इफ वी आर सीनियर्स, अगर हम फॉर एग्जांपल सीनियर्स नहीं भी हैं, हमारे जो जूनियर्स हैं या जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो हमारी रिलायबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जांपल, people can depend on us to show up on time, submit your work, etc. फॉर एग्जाम्पल, हमारी चीज़ें, हम एज अ टीम काम करते हैं, हम टीम वर्क को प्रमोट करते हैं फेडरा में. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टाइम पे नहीं आ रहे और आपके टीम मेंबर्स या आपके जूनियर्स आपके इंतज़ार में हैं, उन्होंने सबमिट करना है अपना काम, अपना टास्क, और आप टाइम पे नहीं हैं, दैट मीन्स कि उनका काम डिले होगा, उनके काम पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं. हम आइसोलेशन में काम नहीं करते. हमें अपने सबऑर्डिनेट्स की, अपने जूनियर्स की, अपने टीम मेंबर्स की ज़रूरत है और हमारे टीम मेंबर्स को हमारी ज़रूरत है. सो वी मस्ट हैव टू बी रिलायबल. रिलायबिलिटी के ऊपर फोकस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन हम बात करते हैं पर्सनल हाइजीन एंड अटायर की. एज यू नो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर आप बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज देख लें, मल्टीनेशनल देख लें, उनका एक प्रॉपर एक ड्रेस कोड है, एक कंपनी की पहचान होती है, गुडविल होती है, उसके ऊपर हम सब ने मिल के काम करना होता है. सो वी एक्सपेक्ट दैट प्लीज मेंटेन अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल हाइजीन, always dress appropriately, make sure our buttons are fully tied, wearing shorts doesn't look professional, and it also doesn't represent Pakistani culture. So while dressing up for office, keep in mind कि इस तरह का आपका अटायर होना चाहिए, आपका इस तरह का ड्रेस होना चाहिए जो आपके कल्चर को, आपकी वैल्यूज़ को सपोर्ट करता हो, उसके साथ अलाइंड हो. And personal hygiene, as you all know, personal hygiene is how much important as we are Muslims. So सफाई निस्फ़ ईमान है, हम सब जानते हैं. तो personal hygiene is important, उसका ख्याल रखें और अपने अटायर का मेक श्योर जब आप ऑफिस आ रहे हैं तो इस तरह के कपड़ों में, इस तरह के अपने ड्रेस में आए जो कि आपकी वैल्यूज़ को सपोर्ट करता है. देन सेल्फ अपग्रेडिंग. सेल्फ अपग्रेडिंग इज समथिंग कि आप अपनी आप को ग्रो कर रहे हैं, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ your professional growth but your personal growth as well. As you know, हमारी एक core value है grow continuously. So हमने करना है क्या है, हम expect क्या करते हैं that rather than letting our skills and knowledge become outdated, we should seek out ways of staying updated. अब इसके अंदर फेडरा भी आपको सपोर्ट करता है. एज अ कंपनी हम अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करते हैं कि जैसे कि आपको पता ही है, खावर भी डिफरेंट आपको सर्टिफिकेशंस और डिप्लोमास, इस तरह की कोर्सेज जो हैं वो शेयर करते रहते हैं आपके साथ. इवन इफ़ यू वांट टू डू सम पेड सर्टिफिकेशन और कोर्सेज, ये आपको ऑलरेडी पता है, आपको बात पहले से ही कम्युनिकेट की गई है कि आप अपनी टीम लीड के साथ शेयर कर सकते हैं और साथ में ये बताएं
अपने टीम लीड को कि इफ़ आई डू दिस, अगर मैं ये कोर्स कर लेता हूँ तो उसके बाद मैं कंपनी के अंदर ये वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, और वो अप्रूव हो जाता है और आप अपनी पेड ट्रेनिंग्स भी ले सकते हैं, सर्टिफिकेशंस भी और कोर्सेज भी। पॉइंट यहाँ पर कहने का ये है कि हम आपसे एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आप अपने लर्निंग पे, अपने लर्निंग कर्व के ऊपर स्टॉप नहीं की। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें हमने अपने कोर वैल्यूज़, जो हमारे 5 कोर वैल्यूज़ हैं, वो मद्देनज़र रखते हुए, बाय कीपिंग देम इन माइंड, फिर हमने बनाई है ये सारी वैल्यूज़। सो वी एक्सपेक्ट कि आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे। दीज आर द थिंग्स जो कि हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, और सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ से नहीं, हाँ, इसमें हम सब शामिल हैं, हमारे टीम लीड्स, हमारे सुपरवाइजर्स, इवन हमारे डायरेक्टर्स, एवरीवन। उसके बाद है स्टेइंग वर्क फोकस्ड। वी शुड नेवर लेट आवर प्राइवेट लाइफ हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर प्रोफेशनल लाइफ। ये आप सब ने ही सुना होगा कि हमें अपने प्रोफेशनल लाइफ को और अपनी पर्सनल लाइफ को अलग अलग लेके चलना पड़ता है, और लेकर चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल, एक अच्छा प्रोफेशनल वही होता है जो अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ मिक्सड अप नहीं करता, एंड दैट इज द की टू बिकम अ कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल। सो वी आर ऑलवेज encouraged to discuss the situation with our team leads for assistance और official breaks. This is life. हर इंसान के साथ प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इस सिचुएशन में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि rather than concealing the things from your supervisor, your team leads, आप उनके साथ शेयर करें कि ये हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, इसकी वजह से मेरा काम अफेक्ट हो रहा है या अफेक्ट हो सकता है, सो दैट आपके टीम लीड्स, आपके एचओडीज कम अप विद सम सॉल्यूशंस, ताकि हम आपको फैसिलिटेट कर सकें। सो बी वोकल, अपनी बातें, अपनी सिचुएशंस, अपनी प्रॉब्लम्स अगर आपके काम पे इफेक्ट कर रही हैं, आपसे मैनेज नहीं हो रहा है, तो वी एक्सपेक्ट कि आप अपने टीम लीड्स के साथ इसको शेयर करेंगे, ताकि हम इस चीज़ के लिए आपके इशू का सोल्यूशन निकाल सकें और आपको फैसिलिटेट कर सकें। द वेरी लास्ट थिंग इज सपोर्टिंग अदर्स। अल्टीमेटली ये सारे पॉइंट्स जो कि मैंने कवर किए हैं, आपको बताए हैं, अगर आप इनके ऊपर फोकस करेंगे, अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, फॉलो करेंगे, तो अल्टीमेटली आप अपने पीयर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने जूनियर्स को, अपने फेडरल फैमिली के हर मेंबर को सपोर्ट करेंगे। वी शुड टेक टाइम टू शो अदर्स हाउ टू डू थिंग्स प्रॉपरली, हेल्प देम एंड लेंड एन एयर व्हेन नेसेसरी। बेसिकली हमारे जूनियर्स, हमारे न्यू ज्वाइनर्स हमसे सीखते हैं। सो वी हैव टू पोर्ट्रे आवर बिहेवियर कि हमने किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है, प्रॉपरली टास्क को कैसे कंप्लीट किया जाता है। ऐसा करने से हम हेल्प भी करेंगे अपने जूनियर्स की, अपने न्यू ज्वाइनर्स की, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जैसे कि पहले भी मेंशन किया था, कि लिसन केयरफुली टू योर टीम मेंबर्स, लिसन केयरफुली टू योर जूनियर्स। उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो इश्यूज हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए वी मस्ट हैव टू बी अवेलेबल फॉर देम, ताकि हम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और फेडरल की बेटरमेंट के लिए इकट्ठे होकर काम कर सकें। नाउ आपको भी मैंने बताया कि हम क्या एज अ फेडरा, एज अ कंपनी, हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे what we are not expected from you, even from us, including me and everyone in Fedra. Sarcasm. Sarcasm is a thing जो कि एक बहुत नापसंद की जाने वाली चीज़ है, as you all know. So please make sure we don't do anything which falls in the category of sarcasm and hurt anyone's feelings. जैसे कि सेशन के स्टार्ट में भी मैंने मेंशन किया था कि हमें अपने जेस्चर से, अपने कमेंट से, अपने किसी भी, इवन किसी एक छोटे सेंटेंस से भी किसी को भी ये फीलिंग करवाना है कि हम उसकी दिल आज़ारी कर रहे हैं, या हमारा जो बिहेवियर है वो डिसरिस्पेक्टफुल है। सो वी हैव टू पोर्ट्रे बिहेवियर जिससे ये जाहिर हो कि एवरीवन इज इम्पोर्टेंट इन फेडरा एंड एवरीवन इज वैल्यूड। ट्रस्ट इज द respect is everyone right in Fedra. So we are talking about violence. Violence के बारे में थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं
कि वायलेंस के ऊपर फेडरा की हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। हम अपने एम्प्लॉयज़ को, अपनी फेडरा फैमिली को एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं। दिस इज़ द रीज़न कि हमने वर्ड यूज़ करते हैं फेडरा फैमिली, और हम सिर्फ फेडरा फैमिली वर्ड यूज़ करते नहीं हैं, हम अपने बिहेवियर से, अपने एक्ट से ये बातें प्रूव भी करते हैं कि हम सबको एज अ फैमिली ही ट्रीट करते हैं। सो एवरीवन नोज़ कि हम अपनी फैमिली के बारे में बहुत सेंसिटिव होते हैं। हमारे घर पे हमारे बहन भाई पेरेंट्स, इनके साथ कुछ भी गलत हो, वायलेंस हो, कोई भी चीज़ हो, तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सेम इज़ द केस विद अस। हम आपको एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं, और हम आपसे भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने जूनियर्स को, अपने टीम मेंबर्स को एज अ फैमिली ही ट्रीट करें, उनके साथ एज अ फैमिली ही बिहेव करें। Verbal and physical violence to everyone at workplace should never be done by ourselves. The organization has a zero tolerance policy on this, and both parties involved in any kind of violence could be terminated without any notice. If we face such a situation, we should never try to be personally involved and solve the problem. Instead, report to the HR office immediately. अल्हम्दुलिल्लाह फेडरा में इस तरह के केसेस कभी भी नहीं हुए, और इंशाल्लाह होंगे भी नहीं, बट एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पॉलिसी, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लेट यू नो कि फेडरा की इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, और अगर कोई भी इसमें इन्वॉल्व पाया जाता है वायलेंस में, तो जो बोथ पार्टीज़ हैं, अगर गिल्टी प्रूव होती हैं, टर्मिनेट करेंगे। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू फोकस कि अगर आप कभी भी इस तरह की सिचुएशन में अपने आप को इन्वॉल्व पाते हैं, तो आप कभी भी खुद से इस सिचुएशन को, इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, अकॉर्डिंगली लेकर चलें और आपको फैसिलिटेट करें। सो वायलेंस शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। प्रोफेशनल सीक्रेट्स। प्रोफेशनल सीक्रेट्स आर समथिंग, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि आप you are not supposed to share with anyone, even with your team leads. So we shouldn't ask questions to our colleagues which are uneasy for them to answer. For example, about their salary, their bonuses, the monetary value of the work, and the reason for the warning received, etc. Monetary benefits provided by the organization are professional secrets, and we don't encourage sharing these even with your team leads. Also, please avoid asking these questions during the interview of candidates. As you know, हमारे बहुत सारे टीम लीड्स हैं, इवन आप लोग भी अपनी टीम के लिए इंटरव्यूज़ करते होंगे। सो हम ये सजेस्ट करते हैं कि इवन आप अपने कैंडिडेट्स से भी इतना ही क्वेश्चन जो उनके लिए अनईजी आंसर करना ना पूछें। उनकी पर्सनल क्वेश्चंस हो सकते हैं, सैलरी रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, और लेट द टैलेंट एक्विजिशन एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हैंडल दीज मैटर्स फॉर यू। सो keep professional secrets with you and don't share these with anyone. Privacy. It is not appropriate to reach out to your colleagues on their personal profiles, specifically if they are not comfortable with it. In case of professional emergencies and needs, we are 100% allowed to reach out to them via phone calls, SMS, and other professional channels, like we are using Google Chat and Slack. So, if your colleagues are not comfortable कि उनको उनकी पर्सनल प्रोफाइल्स पर रीच किया जाए, फॉलो अप किया जाए, इस केस में आप उनको प्रोफेशनल चैनल्स के ऊपर जो हम यूज़ कर रहे हैं, गूगल चैट, स्लैक, उसके ऊपर रीच आउट कर सकते हैं, फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं इन केस ऑफ emergencies and urgent work. Then we are talking about political affiliations and discussions. As you all know, आप सबको पता ही होगा कि political discussions किसी भी कंपनी में अलाउ नहीं की जाती है। पॉइंट क्या होता है इस चीज़ का, क्योंकि जैसे कि पहले ही मैंने मेंशन किया है कि वी आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, वी आर फ्रॉम डिफरेंट school of thoughts, we are from different minds, and we have different point of views. So अगर हम किसी भी तरह की political affiliation workplace पे show करते हैं या उसको support करते हैं, that will ultimately
कैन हर्ट समवन फीलिंग्स, और यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज समथिंग जो कि हमने हर हालत में वर्क प्लेस पर अवॉइड करना है। सो फॉर दैट रीज़न we all should completely avoid showing political affiliations and discussions at workplace. Then coming towards religious discussions, same is the case. Same is the case with the political affiliations and discussions. We should also avoid preaching and discussing religion and religious matters in office premises. Same जैसे कि मैंने पहले भी mention किया, we are from different sects, different हमारे फ़िरके हैं, हम लोग डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट मजहबी फ़िरकों से ताल्लुक़ भी रखते हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन ना आए, इस चीज़ से बचने के लिए आपको रिलीजियस डिस्कशंस भी ऑफिस में नहीं करनी चाहिए और हमें स्ट्रिक्टली इसको अवॉइड करना चाहिए, एवरी वन ऑफ अस। देन ऑफिस पॉलिटिक्स एंड गॉसिपिंग। ऑफिस पॉलिटिक्स एक बहुत ही ग्लोबली मसला है पूरी दुनिया में, नॉट इन पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस में या सिर्फ एशिया में नहीं होता ये एक बहुत बड़ा अराउंड द ग्लोब, हर जगह पर ये ऑफिस पॉलिटिक्स जो है हर कंपनी को फेस करनी पड़ती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फेडरल में इस तरह कल्चर है, हम इस तरह के लोग हैं कि हमारे ऑफिस में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं और हम फ्यूचर में भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑफिस में किसी भी तरह की ऑफिस पॉलिटिक्स और गॉसिप्स को जो है वो फ़रोग ना दिया जाए। सो लेट्स अवॉइड ऑफिस पॉलिटिक्स, गॉसिप्स, लेग पुलिंग एंड स्प्रेड नेगेटिविटी। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि हम आपसे एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आप पॉजिटिव रहें और साथ में पॉजिटिविटी को स्प्रेड भी करें। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। बेसिकली हमारे पास टाइम की शॉर्टेज थी तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज रखा है, सिंपल रखा है और कोशिश की है कि मैं इसको कम टाइम के अंदर अप्रोप्रिएटली, इफेक्टिवली डिलीवर कर सकूं। सो इफ़ एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स जो कि मैंने बताए हैं, शेयर किए आपके साथ, तो यू कैन आस्क और आप वन बाय वन अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। Sana, no questions from my side. Thank you. Have a great day. किसी का भी कोई भी क्वेश्चन नहीं है? इतना अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। ओके, मैं वेट करूंगी 2 मिनट और कि अगर किसी का क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, sorry Sana, can you hear me? Yes. अच्छा, sorry, I joined a little late. मुझे बस ये जानना था कि अगर आज से आपने जो सारी चीज़ें बताई हैं उनमें से कुछ चीज़ हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, क्या उसका है सिनेरियो? फॉर एग्जाम्पल वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट ऑफिस पॉलिटिक्स, यू डिस्कस्ड अबाउट रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, तो अगर कोई ऐसा इशू आ जाता है सो हाउ डू यू सजेस्ट? ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस। जैसे कि अनफाल थी, आई गेस अनफाल ने क्वेश्चन किया है कि अगर ऐसी कोई चीज़ है जैसे को मैंने बताई है, एक्सप्लेन की है, इनमें से अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है। सबसे पहली चीज़, यू हैव टू बी पॉजिटिव। अगर आप इस तरह की चीज़ों में आपके साथ हो भी रही हैं, फॉर एग्जांपल कोट कर रही हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आप ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं या आपके साथ पॉलिटिक्स की जा रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ तो आपने ये करनी है कि अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, फ़ौरन से पैनिक ना हो। और अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया, अपने टीम लीड से, अपने इमीडिएट सुपरवाइज़र से कंसल्ट करें, उसको ये चीज़ बताएं। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपका जो टीम लीड है, ही और शी हैज़ सो अदर थिंग्स टू डू एज वेल। काम का प्रेशर है, चीज़ों का प्रेशर है, तो बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें उनकी नज़र से स्किप भी हो सकती हैं। मे बी अगर आप किसी ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं या आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आपके टीम लीड को पता ना हो। सबसे पहले तो आप अपने टीम लीड को लूप में लेंगे, उन्हें बताएंगे, उनके साथ कंसल्ट करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि ये जो केस है, इस तरह के इश्यूज जो हैं, आपके टीम लीड्स ही बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिवली उसको रिजॉल्व कर देते हैं। लेकिन इन केस आपकी टीम लीड से भी
आपको फैसिलिटेट नहीं हो पाए हैं, आपका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ और चीज़ें बहुत ज़्यादा हाथ से बाहर हो रही हैं और अलार्मिंग सिचुएशन बन गई है, देन यू हैव टू इमीडिएटली रिपोर्ट टू HR डिपार्टमेंट. यू कैन कम टू मी एनी टाइम एंड आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं और फिर उसको हम कंपनी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर जो हमारे एक्शन प्लान्स हैं, उसके ऊपर जो हमारे डिसिप्लिनरी एक्शंस होते हैं, वो जो हमारी पॉलिसीज़ में चीज़ें ऑलरेडी रिटन डाउन हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम फिर इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं और रिजॉल्व करेंगे. सो आई होप कि मेरा आंसर समझ में आ गया होगा. अगर फिर इसके ऊपर कोई और क्वेश्चन है तो आप अनफाल पूछ सकते हो. नहीं, thank you so much, Sana. This was very helpful and very explanatory. Thank you. Thank you so much. Thank you. So, do we have any more questions from anyone? Excuse me, I actually have a question here. Please tell me your name. Actually, it's a continuation to your answer. What you said right now, that you should go to your team leader or someone else like that. So sometimes ऐसा होता है कि we see that there is a favoritism or there is something in which a senior is involved like that. I have seen such scenarios in my previous company. So I would like to ask that what HR department would do to secure the whistleblower or someone like that who reports such issues, that no influence is occurred on him after that, the reporting the issue or someone like that. बेसिकली आपकी आवाज़ थोड़ी डिस्टॉर्ट कर रही थी, बट जो मैं समझ सकी हूँ, आप पूछना ये चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप फेवरेटिज्म आपके साथ हो रहा है आपकी टीम में, यानी कि दैट मीन्स आपका टीम लीड ही कर रहा होगा या आपका इमीडिएट सुपरवाइजर ही आपके साथ कोई फेवरेटिज्म कर रहा है या आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है इन योर टीम. सो इस सिचुएशन में आप पूछ ही रहे हैं कि HR बेसिकली इस पे करते क्या हैं. मैं जर्नली और ग्लोबली तो बात नहीं करूंगी उसके ऊपर, क्योंकि आई एम द HR मैनेजर और फेडरल सॉल्यूशंस और हमारी अलग पॉलिसीज़ हैं. हर कंपनी की डिफरेंट अलग पॉलिसीज़ होती हैं. यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ. इन फ्यूचर आप सबको इंशाल्लाह बहुत जल्दी एम्प्लॉय हैंडबुक मिलेगी, जिसके ऊपर मैं अबू बकर खावर हम लोग पिछले 3-4 महीने से काम कर रहे हैं और अपने फाइनल स्टेजेस में हैं. आपको बताना ये चाहूँगी, मैं थोड़ा सा इंट्रो दूंगी यहाँ पर कि फेडरल सॉल्यूशंस हम बेसिकली फोकस करते हैं एम्प्लॉय सेंट्रिक पॉलिसीज़ के ऊपर. देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि होती हैं कंपनी सेंट्रिक. हमारा क्या पॉइंट है, हमारा फोकस क्या है, हम जैसे कि मैंने पहले बताया फेडरा को एज अ फैमिली समझते हैं. यू ऑल आर आवर फैमिली मेम्बर्स. हम आपको एम्प्लॉयज़ ट्रीट ही नहीं करते. इवन एम्प्लॉयज़ कहना भी हमें अच्छा नहीं लगता कि हम आपको एम्प्लॉयज़ कहें. आपने नोट किया होगा जी चैट में भी, अनाउंसमेंट्स में भी, जर्नल में भी, मैं, खावर, अबू बकर, मुश्तबा, हमारे सारे HODs जो हैं, आप सबके लिए एम्प्लॉयज़ का वर्ड यूज़ नहीं करते, हम कहते हैं फेडरा फैमिली. सो जब हम फैमिली का वर्ड यूज़ करे हैं, दैट मीन्स कंपनी की सारी पॉलिसीज़ एम्प्लॉय सेंट्रिक हैं. अब हमारी पॉलिसीज़ यहाँ पर कुछ इस तरह की हैं कि अगर आपको इस तरह की कभी सिचुएशन फेस करनी पड़े, जो कि आई एम 110% श्योर कि आपको कभी नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीम लीड्स, हमारे HODs, हमारे डायरेक्टर्स सब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं. यहाँ पर फेवरेटिज्म का आई डोंट थिंक सो दूर तक कोई नामो निशान नहीं है. और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इनजस्टिस हम यहाँ पर किसी के भी साथ नहीं करते, चाहे वो जूनियर है चाहे वो सीनियर है. और यहाँ पर ये चीज़ भी नहीं है फेडरा के अंदर कि अगर कोई टीम लीड है तो अपनी अथॉरिटी का या अपनी पोजीशन का कोई गलत और नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा. क्या उठाता है, क्योंकि एवरीथिंग इज सो ट्रांसपेरेंट, कोई भी चीज़ किसी से छुपी हुई नहीं है. लेग पुलिंग, हमारी पॉलिसीज़, हमारे प्रोसीजर्स, हमारे प्रोसेस इस तरह के हैं कि लेग पुलिंग, ऑफिस पॉलिटिक्स और इस तरह की चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं. लेकिन इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका टीम लीडर आपका जस्टिस नहीं कर रहा या वो फेवरेटिज्म कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप HR डिपार्टमेंट को फ़ौरन रिपोर्ट करेंगे, अपनी पोजीशन, अपनी बातें क्लियर करेंगे, वहाँ पर बताएंगे. और फिर जो HR होता है वो कंपनी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर एक्ट करता है और आपको उसी तरीके से अकॉर्डिंगली आपको फैसिलिटेट किया जाता है. सो अगर मैं फेडरल सॉल्यूशंस की बात करूँ, आई एम 110% श्योर इस तरह की कभी भी कोई सिचुएशंस नहीं आएगी इन फ्यूचर. लेकिन अगर आती है तो आई एम ऑलवेज हियर, और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि किसी के साथ भी यहाँ पर इनजस्टिस हो या फेवरेटिज्म हो. सो इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग एल्स, आप पूछ सकते हैं. एक्चुअली आई थिंक मैं अपना क्वेश्चन जो वो क्लियर नहीं कर सका. मैं ये कहना चाह रहा था कि लेट्स सपोज समवन रिपोर्ट्स, और रिपोर्ट होने के बाद अब क्योंकि
जो भी रिपोर्ट करे तो उसकी एनोनिमिटी या जो विसल ब्लोअर है उसको सिक्योरिटी किस तरह से प्रोवाइड की जाएगी, उसका फ्रेमवर्क क्या होगा कि इन फ्यूचर इस रिपोर्टिंग की वजह से उसके साथ जो है वो एक्स्ट्रा कोई मतलब के इशू ना हो, या उसको पॉइंट आउट ना किया जाए या फिगर आउट ना किया जाए कि ही सेड दिस, तो उसके साथ अब वो एक रिवेंज या ग्रज वाला सीन स्टार्ट हो, उसके बारे में पूछना चाह रहा था। ओके 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 ओके, मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि नॉर्मली लोग समझते ये हैं एचआर के बारे में, एचआर डिपार्टमेंट के बारे में इस तरह के मिथ्स हैं काफ़ी कि एचआर ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, या वो कॉन्फिडेंशियलिटी इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, एचआर एक बहुत कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट है, और जो भी एचआर डिपार्टमेंट अगर कॉन्फिडेंशियल नहीं है तो अकॉर्डिंग टू मी वो फिर एचआर डिपार्टमेंट ही नहीं है, क्योंकि एचआर के पास कंपनी की भी सारी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है और एम्प्लॉयज़ की भी। सो अब यहाँ पर मैं, चूँकि हम फेडरा में काम करते हैं, हम फेडरा के फैमिली मेम्बर्स हैं, तो फेडरा के बारे में बात करूँगी, और फेडरा के बारे में आपको मैं ये बताऊँगी कि हम ऑलरेडी इस चीज़ को हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस में रखा हुआ है कि अगर हमें कोई एम्प्लॉय कोई छोटी सी बात भी, ज़रूरी नहीं कोई बड़ी बात हो, कोई बहुत बड़ा इशू हो, अगर कोई हमें एम्प्लॉय को एक छोटी सी बात भी रिपोर्ट करता है या कहता है कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम है, तो हम उसकी आइडेंटिटी कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते, नॉट इवन टू हिज और हर टीम लीड, इवन उनके एचओडीज को भी नहीं। अब इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, हमारा एक फॉर्म है जिसके अंदर आप अपनी सजेशंस देते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। हमने उसके अंदर जो आपकी नेम की फील्ड है उसको अनोनिमस रखा हुआ है, हमने आपकी नेम की फील्ड को ऑप्शनल रखा हुआ है कि अगर आप अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करना चाहते तो आप ना करें, आप वहाँ पर एनोनिमसली भी हमें अपनी सजेशंस, अपनी कंप्लेंट्स भी, इवन हमें क्लिकअप के ऊपर कुछ कंप्लेंट्स भी रिसीव होती हैं, पास लोग होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करना चाहते, तो ये फॉर्म बनाने का मकसद भी यही है, इसी चीज़ को फ्लरिश करना है कि हमारे लिए आपकी आइडेंटिटी इम्पॉर्टेंट है, कि इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज़ में हम कभी भी आपकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करते। सो यू डोंट हैव टू वरी इफ़ यू आर वर्किंग इन फेडरा, सो आपकी आइडेंटिटी और इस तरह की आपकी गुडविल या आपकी जो रेपुटेशन है आपकी टीम लीड की नज़रों में, आपकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करके वो कभी भी डैमेज नहीं की जाएगी फ्रॉम एचआर डिपार्टमेंट। सो आई कैन अश्योर यू दिस। थैंक यू सो मच सर। Thank you. So, do we have any more questions? I think we don't have any questions. So, let me conclude this that main purpose क्या था इस सेशन का? I truly believe this कि हम अच्छा, ये आप स्लाइड भी जो है पोस्ट कर देंगी आप गूगल चैट के ऊपर? जी श्योर, मैं आपको इनफैक्ट ये जो सेशन है ये भी मैंने रिकॉर्ड किया है, तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी और आपको ये स्लाइड्स भी मिल जाएंगी। मैं इंशाल्लाह ड्राइव के ऊपर इसको अपलोड कर दूंगी एंड यू ऑल कैन हैव एक्सेस ऑफ इट। चलो ठीक है, थैंक यू। ओके, सो कंक्लूड करूंगी मैं। आई ट्रूली बिलीव कि हम सारे ये प्रोफेशनल हैं यहाँ पर, इन गाइडलाइंस को इंट्रोड्यूस करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि हम ये समझते हैं कि लोग यहाँ पर प्रोफेशनल नहीं हैं या उनमें एथिक्स नहीं है। चीज़ें यहाँ पर अंडरलाइन और हाईलाइट क्यों की गई हैं, ताकि हमारी भी एक्सपेक्टेशंस आपके साथ क्लियर हों, आपको पता हो कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है और क्या एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो आई होप कि मैं इसको प्रिसाइजली और सिंपल वे में कन्वे कर सकी हूँ। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हों तो हम इस सेशन के बाद भी आई एम ऑलवेज हियर, और आप मुझसे पर्सनली भी, जी चैट पे भी। और यार इंटरनेट नहीं मेरे बुखार। So I really thank you all. Sorry Sana, I'm sorry Sana, there was just one last question. कोई भी न्यू हायरिंग होती है फेडरा में या कोई भी न्यू कैंडिडेट आता है अगर, तो उसको जो ये प्रोफेशनल एथिक्स कोड्स बेसिक जो भी सारी चीजें प्रोफेशनलिज्म पे ये कौन गाइड कर रहा होगा? क्या ये येल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ये एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से चीजें आ रही होंगी? ओके, मैं आपको बताती हूँ बेसिकली क्या है। जब न्यू जो अभी मैंने बताया था, जैसे कि हमारी एम्प्लॉय हैंडबुक जो है अपने फाइनल फेजेस में है, जैसे ही फाइनलाइज होगी ईच एंड एवरी फैमिली मेम्बर ऑफ फेडरा उन सबको ये डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। अब जब न्यू एम्प्लॉय आएगा, न्यू हायर आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं एचआर डिपार्टमेंट में हूँ, मैंने ये एम्प्लॉय हैंडबुक बनाई, पॉलिसीज बनाई और सारी चीज़ें एक जगह पर हमने लिख ली हैं, जो कि हम एम्प्लॉय हैंडबुक की शक्ल में अपने हर फैमिली मेम्बर को प्रोवाइड करेंगे।
पहली चीज़ तो ये हो गई कि हम एम्प्लॉय हैंडबुक देंगे। न्यू हायर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको अच्छे तरीके से थॉरोली पढ़ेगा और उसकी जो भी क्वेश्चंस होंगे देन अगर उसको इसके ऊपर कोई कंसर्न्स हैं, कोई चीज़ें हैं, देन वो HR डिपार्टमेंट के पास मेरे पास आकर मुझसे पूछ सकता है, या उसको कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उन पॉलिसीज को लेके, देन हम उसको बैठकर इस चीज़ को हम डिस्कस कर सकते हैं। सेकेंडली, ये जो सेशन है रिकॉर्ड करने का मकसद भी यही था कि ये रिकॉर्डेड सेशन है, इसको अपलोड कर दिया जाएगा ड्राइव के ऊपर, हर फेडरा के हर फैमिली मेम्बर को उसकी एक्सेस होगी। तो जो हमारे न्यू हायर्स हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी इन सारी चीज़ों को लेकर, प्रोफेशनलिज्म, कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स को, तो वो उस ड्राइव में जाकर ये रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकता है। अदरवाइज आई एम ऑलवेज हियर, तो मैं पर्सनली भी उनको बता सकती हूँ, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। Perfect. Sounds good. Thank you so much, sir. Thank you. So I really would like to thank you all कि आप लोगों ने अपना इतना कीमती टाइम निकाला और मुझे टाइम दिया। So thank you so much. एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड कि मैंने जो आज बातें बताई हैं ये कुछ यूज़फुल होंगी और हम अपनी फेडरा की जो कोर वैल्यूज़ हैं उनको प्रमोट करेंगे ताकि हम एक अच्छी, इनफैक्ट पूरी दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी बन सके। सो थैंक यू ऑल एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड कि हम मिल के फेडरा के बेटरमेंट के लिए और अपने बेटरमेंट के लिए काम करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. Thank you. Thank you.